न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। वायनाड में प्रियंका गांधी ने MCF स्कूल प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने फॉरेंसिक बैठक की अध्यक्षता की। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त, ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच जारी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। वायनाड में प्रियंका गांधी ने MCF स्कूल के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। सांसद प्रियंका गांधी ने MCF पब्लिक स्कूल के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शिक्षा का सबसे बड़ा मूल्य बताया। उन्होंने कहा कि वे स्कूल के हेड बॉय से बात कर रही थी, जिसने उन्हें बताया कि उसे ये स्कूल इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ उसे खुद को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान बच्चों को अपने विचार प्रकट करने, बहस करने और खुलकर सोचने का अवसर देता है तो ये वे संस्थान सच्चे अर्थों में सफल है। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को भी अहम बताया कि शिक्षक यदि बच्चों की बात सुन सके, उन्हें समझ सके और उनके नजरिए को महत्व दे सके तो वही शिक्षा का असली उद्देश्य है। Our heart understands instinctively what is right and what is wrong. So as I stand here before you today, I would like to just tell all of you, because you are young and you have a whole life ahead of you, that true fulfillment for you will come, true happiness will come if you are loving, compassionate and kind to everybody else. And for that you have to be loving, compassionate and kind towards yourself also. So don't be too hard on yourself. I was talking to your head boy and he told me that he loves the school. I said, why? He said he loves the school because it gives him freedom to express himself. And I think if that is one compliment for any educational institution, it is that. If you are able to give the children freedom to express themselves, to argue their points of view out, if teachers are able to listen to them and hear them out and help them to grow while understanding their point of view, then you have truly achieved success as an educational institution. So I believe this building will have lots of new facilities. I was asking your principal, Madam, what are the facilities that you provide? And she named a whole bunch of them that even I did not have in my school. So I must compliment all of you. You are going to have this AI facility here, which is hopefully going to open even new frontiers and opportunities for you. So use these opportunities well. Your teachers and your parents make a lot of sacrifices for you to be here, to learn, to grow, and to have strong futures. We must always respect what other people do for us and respect their participation in making us what we are. By the time you leave school, you may not have a full idea of what your life will be like, what your future will be, but you will have a good idea of who you are going to be as a person for the rest of your life. So if that idea of yourself can include love for others, can include kindness towards others, can include honesty, can include the worth of working hard for a living and earning without having to cheat, without having to lie, then I think you will be on the right path and you will have successful and fulfilling lives. That is what I wish most for all of you. As I said, that this institution develops your heart as much as your mind is developed, and you have the whole world ahead of you. I wish all of you the very, very best for strong futures, for beautiful lives ahead, and I wish the MCF much success in the institutions that you are building. I was very heartened to know the good work that you did during the Churalmala Mundakai tragedies, and how you work not just in your institutions, but outside of them also to build a better society for all of us. Thank you very, very much.
न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। गृह मंत्री हर्ष संवगी ने फॉरेंसिक बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संवगी ने एक अहम अपडेट साझा किया है। उन्होंने बताया कि आज फॉरेंसिक साइंस गुजरात की पूरी टीम के साथ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था उन सभी परिवारों के डीएनए का जल्द से जल्द मिलान करना जो इन समय अनिश्चितता और इंतजार की स्थिति में है। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस दिशा में बड़ी मदद भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक कुशल टीम शामिल है। हर्ष संवगी ने ये भी बताया कि बैठक के बाद वे राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे ताकि पूरी अभियान की प्रगति को देखा जा सके और उसमें और तेजी लाई जा सके। राष्ट्रीय सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस संवेदनशील प्रक्रिया को गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ा रही है। गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर काम चल रहा है। थैंक यू। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त, ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच जारी। अहमदाबाद से आई इस भीषण खबर ने पूरे देश को झंझोर दिया है। लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट डॉक्टरों के छात्रावास की छत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें चालक दल के सदस्य भी शामिल है। ये घटना देश की सबसे गंभीर विमान दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। घटनास्थल पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय वायुसेना फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, अग्निशमन और बचाव दल, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, नगर विमानन महानिदेशालय और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीमें सक्रिय रूप से मलबे की जांच कर रही है। मलबा अब भी छात्रावास की छत पर ही बिखरा हुआ है और जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स डाटा रिकॉर्ड और अन्य सुराग जुटाने की कोशिश में लगे हैं। इस हादसे के पीछे की तकनीकी या मानवीय चूक को जानने के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमाद्री 2025 अभियान को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में IBTB द्वारा आयोजित हिमाद्री 2025 सीमा स्तरीय टेक्निक अभियान के फ्लैग ऑफ समारोह में हिस्सा लिया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में साहस, फिटनेस और समर्पण की भावना को बढ़ावा देना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने IBTB के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि वे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और उनका ये अभियान युवाओं को प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने हिमाद्री 2025 को न केवल एक साहसिक यात्रा बल्कि एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी बताया, जो हिमालयी क्षेत्रों की सामरिक और पर्यावरणिक महत्व को उजागर करता है।
आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा। पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हमला केवल भारत पर ही नहीं बल्कि मानवता पर हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि जब भारत के प्रतिनिधियों ने विभिन्न देशों के राजनयिक और नेताओं से मुलाकात की तो सभी ने एक स्वर में आतंकवाद की निंदा की। सभी ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप स्वीकार नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ नहीं है। हमारी समस्या उस देश की सेना और जनरल से है जो देश को चलाने और आतंकवादियों को इस्तेमाल करने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। उन्होंने आतंकवाद को एक कैंसर की तरह बताया जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर कदम उठाएं। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स न जनता के द्वारा चुने हैं न जनता के द्वारा उत्तरदायी है। हमने ये भी बताया कि सारे आजादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री ताशकंद समझौता, क्या फिर आपके शिमला एग्रीमेंट। अटल जी तो बस से ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद, संसद पे हमला, मुंबई, उरी, पुलवामा, पहलगाम। हमने ये भी बताया कि एक बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेन टेररिस्ट है। हमने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। हमसे सवाल पूछा गया कि आप अंदर क्यों घुस के मारे। हमने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान, उनकी पहाड़ियों में। तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित एक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर भारत की बदलती तस्वीर को लेकर अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के पूर्वोत्तर भारत को एक अराजक और अस्थिर क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, जहां आए दिन आंदोलन, हिंसा और अपराध का माहौल बना रहता था। लेकिन बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार ने कई शांति समझौते किए, जिसके अंतर्गत कई
चंपरपंथी संगठनों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धाराओं में लौट आए। सोनीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार ने कई शांति समझौते किए, जिसके अंतर्गत कई चरमपंथी संगठनों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में लौट आए। उन्होंने इसे एनडीए सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि आज पूर्वोत्तर विकास, निवेश और पर्यटन की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास के सिलसिले में बहुत सा आंकड़ा मैं दे सकता हूं, क्योंकि विकास के सिलसिले में सारा आंकड़ा आज हमारे प्रदर्शनी में आज विशेष रूप से दिखाया गया है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इतना ही कहूंगा कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट पहले कांग्रेस का कार्यकाल में अशांति की एक इलाका के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को जाना जाता था, जहां हमेशा बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, अलग अलग सा एजिटेशन का माहौल थे। वो अशांति माहौल को खत्म करके शांति का माहौल बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, परम आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो भी समझौता की है, अलग अलग हमारी यहाँ की जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उन्होंने हथियार छोड़कर हमारे मूल स्ट्रीम पर आ गए। हमारे जो भी लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आस्था और विश्वास व्यक्त करके वो लोग भी हमारा मेन स्ट्रीम पर आ गए हैं। इसी के वजह से आज 74% यहां जो आपसा विद्रोह की गई है, इसका मतलब साफ है, नॉर्थ ईस्ट में शांति का माहौल है। शांति का माहौल होने के वजह से आज यहां प्रगति संभव हुई है। सड़क हो, पुल हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, पहली बार के लिए असम में देखिए आप, डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक, ये चीज कभी भी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। देने का तो बात छोड़िए, उन्होंने कभी भी असम की जनता ने जब भी आवाज दी, नॉर्थ ईस्ट की जनता ने आवाज दी, उन्होंने कभी सुनने के लिए कोशिश नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना आंदोलन से सारा नॉर्थ ईस्ट में आज डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक ये संभव किया है। इतना बड़ा योगदान असम और नॉर्थ ईस्ट को दिए है। और अभी अभी आपने देखे असम में भी हमारे इन्वेस्टर समिट 2.0 हुई है। इसमें भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से, सहयोग से आज बड़े बड़े उद्योग जगत के हस्तियों ने यहां 4 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने वादा किया है। तो इससे साफ जाहिर है। और साथ साथ में कुछ दिन पहले भारत मंडपम में दिल्ली में जो भी राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुई है, तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी रहे और प्रधानमंत्री जी के सहयोग की वजह से अगले 10 साल में 4.5 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट में निवेश की जाएगी। तो इसलिए साफ जाहिर है, जो भी सहयोग की गई है, इसके वजह से आज असम नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और अगले दिनों में असम भी भारत के एक बड़े शक्तिशाली प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट भी बनाएंगे। बस, थैंक यू। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मगनीलाल मंडल बने बिहार राजद के नए अध्यक्ष तेजस्वी यादव बोले, अनुभवी नेता बिहार की राजनीति में एक अहम बदलाव करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने मगनीलाल मंडल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने उनके अनुभव और योगदान की सराहना की। तेजस्वी यादव ने कहा, मगनीलाल मंडल एक अनुभवी राजनेता है। उन्होंने वर्षों तक लोगों की आवाज उठाई है और हमारे पिता लालू प्रसाद यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। तेजस्वी ने ये भी कहा कि मगनीलाल मंडल की समाजवादी राजनीतिक में बड़ी भूमिका रही है और उन्हें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी। ये नियुक्ति आगामी चुनावी समीकरणों पर पार्टी के सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की राजनीति का हिस्सा मानी जा रही है। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी
प्रस्तावक मंगनीलाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं, इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनीलाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। देखिए, हम लोगों की पार्टी जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलती है और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे और जनता जो है वो बदलाव चाहती है। ये सरकार जो है फेल हो चुकी है हर एक मामले में और खुद के ही नीति आयोग की रिपोर्ट में अपने आप को फेल साबित किया। इसलिए रिटायर्ड अधिकारियों की बदौलत, रिटायर्ड मुख्यमंत्री अब बिहार जो है सरकार को बदलेगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। राजकोट में विजय रूपानी को श्रद्धांजलि। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपानी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजकोट में बाजार आज आधे दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। रूपानी का 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना में निधन हो गया था, जिससे पूरे राज्य में शोक में डूबा है। राजकोट के एक स्थानीय निवासी नवनीत ने बताया कि विजय रूपानी राजकोट से बेहद जुड़े हुए थे। वे हमेशा लोगों से मिलते थे और उनके सुख दुख में शामिल होते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजकोट एयरपोर्ट, अस्पताल और जल संसाधन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के विकास के लिए अथक प्रयास किए। नवनीत ने ये भी कहा कि इन विकासों के पीछे विजय रूपानी का गहरा लगाव था, जो इस शहर को हमेशा उनके लिए खास बनाए रखेगा। भी बंद रखी हुई आज ये ऐसी दुर्घटना है जो राजकोट को कभी नहीं भूलेंगे राजकोट वाले। और राजकोट से ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री है इसलिए, लेकिन राजकोट के जो हमारे चाहते व्यक्ति थे विजय भाई रूपानी को राजकोट से इतना प्रेम था। जब भी राजकोट आते तो राजकोट वासियों को मिलके और राजकोट वालों से प्रेम करके जाते और राजकोट के लिए जितनी भी हमें सुविधाएं मांगी सदाई दिए। हिरासर एयरपोर्ट, एम हॉस्पिटल, ये जितने ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बने, ये पानी का जो सुविधा बरसों से सौराष्ट्र के अंदर जो तकलीफें थी वो सब विजय भाई ने अपने अकेले सूझ से है गवर्नमेंट साथ, लेकिन विजय भाई का जो प्रेम और लगाव राजकोट के साथ का इसका यह नतीजा है और राजकोट विजय भाई को कभी नहीं भूलेगी। आज बाजार भी बंद रखा, आज अभी बाजार भी इसके श्रद्धांजलि में हमने बंद रखी क्योंकि राजकोट का एक सितारा हमसे छोड़ के चला गया। एक नाम बता दीजिए। नवनीत भाई नथवाणी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 त्रिपुरा सीएम मानिक साहा का संदेश। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 के अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने रक्तदान को एक मानवता का उत्सव बताया और राज्यवासियों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, हम हर साल इस दिन को त्रिपुरा में पूरे उत्सव से मनाते हैं। कई संगठन और एजेंसियों इस पहल में भाग लेते हैं और नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। उन्होंने इन संस्थाओं को सम्मानित भी किया और उनके प्रयासों को सहारा। मानिक साहा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो लोग अब तक रक्तदान नहीं करते हैं उन्हें आगे आकर इस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य में हर साल आदर्श रूप से 40,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है और खुशी की बात यह है कि पिछले वर्ष राज्य के ब्लड
बैंकों में 42,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो एक लक्ष्य से भी अधिक है। आज विश्व रक्तदाता दिवस और इसमें त्रिपुरा में भी हर साल ये मनाता है और इस बार तो मैंने देखा जो विभिन्न संगठन और एनजीओ ये लोग हर साल ब्लड डोनेशन कैंप ये लोग करते हैं, इनको भी सम्मान दिया गया है। और ये विश्व जो ब्लड डोनर्स है आज का दिन जो हम लोग मनाते हैं, उसमें मेन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, जो अभी तक ब्लड नहीं दे रहे हैं, जो सोच रहे हैं ब्लड देने से थोड़ा सा समस्या है, उनको थोड़ा सा मैसेज देना है। ब्लड देने से कभी भी खराब नहीं होता है, बल्कि अच्छा होता है। वहाँ ब्लड देने से अपना शरीर भी अच्छा होता है, नया ब्लड सेल फॉर्म होता है और आने वाले दिन जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जो होता है इससे बच सकता है और अपना भी अगर कोई समस्या है शरीर में वो भी पता लग जाता है। इसीलिए 18 से 60 इयर्स इवन 65 इयर्स तक जो भी ब्लड मतलब हमेशा देते हैं 60 से ऊपर, ये लोग भी 65 इयर्स तक 18 से दे सकते हैं। और त्रिपुरा में ये बहुत दिन से यहाँ पर ये चालू है कि लोग कभी भी ब्लड बैंक में ब्लड का कभी कमी हो तुरंत पहुंच जाते हैं और उसका एक इतिहास भी है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले दिन जो अभी तक ब्लड नहीं दे रहे हैं ये लोग आए और ब्लड दें और एक यूनिट ब्लड देने से माने कम से कम 3 लोगों को भी उसको बचा जा सकता है। तो सेपरेशन आजकल विभिन्न जो होल ब्लड को सेपरेट भी कर सकते हो, सेल को सेपरेट कर सकते हो, उसके बाद प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हो। इससे जो जिसको जो चाहिए उस हिसाब से दे सकते, 3 आदमी को बचा सकते। देखिए ब्लड यूजुअली माने पॉपुलेशन के वाइज 1% ब्लड होना चाहिए। हम लोग के यहाँ त्रिपुरा में 12 सरकारी और बेसरकारी में 2 ब्लड बैंक है। तो उस हिसाब से पॉपुलेशन 40 लाख से 1% ब्लड होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो इसका मतलब 40,000 यूनिट 350 ml अगर हम मान के चले तो उस हिसाब से 40,000 हर साल रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखा लास्ट ईयर भी हमने देखा 42,000 यूनिट रहा। तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा है, बैलेंस रखा है। कभी कभी जैसे इलेक्शन के टाइम में समस्या होता है या कोरोना के टाइम में समस्या हुआ था, तो मैंने आह्वान किया था जनता को, ये लोग आया और ब्लड भी दिया है। तो यहाँ पर अच्छा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस और PCIM की लड़ाई सिर्फ दिखावा, बोले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल अंटोनी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनिल अंटोनी ने कांग्रेस और CPIM तीखा हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां केवल दिखावी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन असल में उनका मकसद भाजपा को लेकर की राजनीति से दूर रखना है। उन्होंने कहा कांग्रेस और CPIM दोनों झड़ी गठबंधन का हिस्सा है। नीलम्बाबूर सीट वायनाड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां से प्रियंका गांधी सांसद है। अब कांग्रेस पार्टी खुलेआम तौर पर वेलफेयर पार्टी का समर्थन कर रही है, जो जमानते इस्लामी की राजनीतिक शाखा है। इस संगठन दुनिया भर में कट्टरपंथ फैलाने के लिए जाना जाता है। अनिल अंटोनी ने ये भी कहा कि CPIM की स्थिति भी इससे बेहतर नहीं है और दोनों दल एक दूसरे को खुश करने की होड़ में कट्टरपंथी ताकतों से समर्थन ले रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक करार दिया है। The Congress Party and the CPM, both of them are in the national level alliances of the so-called India Alliance. But in Kerala, they are involved in a mock fight just to keep the Bharatiya Janata Party away.
both the Congress and the CPM in Kerala, they are competing with each other on appeasement. The Congress, Nilambur, a by-election is happening. It comes under the Wayanad Lok Sabha constituency where Priyanka Gandhi Vadra is the MP from there. Earlier Rahul Gandhi was a member of parliament from there. And here the Congress party is now openly taking the support of the Welfare Party. The Welfare Party has said that they are going to support the Congress, and the Congress state leaders have very clearly said that they are very happy to take their support. This Welfare Party is the political arm of the Jamaat-e-Islami, which is a global organization, Islamic organization, radical organization, that is involved in a lot of radicalization across the world. The CPM also is not any better. There, the CPM in Nilambur is having the support. They are claiming the support and taking the support of PDP. This PDP is the party which was led by Abdul Nasser Madani, who is now in a jail in Bangalore and is the prime accused of a bunch of serial blasts that happened in Coimbatore in 1998. So both the Congress party and the CPM, they are taking the support of radical elements, and they are in a competition with each other for appeasement. The Bharatiya Janata Party has also put a strong candidate there, and we are very sure that the people of Kerala are seeing through all this appeasement of both the Communists and the Congress, and we will see a very good result for the BJP in Kerala. Just a few days back, there was also a delegation which was led by the leader, the national top leader of the CPM, Sri M.A. Baby, who had gone to Kashmir. And from there, again, during these times when our Prime Minister and our government has made it very clear that our government has zero tolerance to terrorism, where blood and water will not be flowing together, where trade and terrorism cannot go on together. In Kashmir, the top communist leaders are now, during these times when India is taking strong stances against terrorism, the Communist Party is now saying that they want Article 370 to be reinstated, and they want talks with Pakistan to once again start. This is absolutely not acceptable. This is once again the CPM party trying to appease certain minorities, and for that they are taking steps which is against national interest. It is very sad to see these two old national parties, once national parties, do this kind of appeasement politics. The people of this country sees through all this, and we are very sure that just like how in every other state across India, it is only a matter of time that the Bharatiya Janata Party will emerge as the #1 party in Kerala also, because the people of India have full faith in our Prime Minister's leadership and vision, and the people of India want a government. The people of Kerala also will want a government that stands for Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and no appeasement for anybody. अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए तमाम बड़ी खबरें मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।